हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में हम इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि पास्ट में यूपीएससी के प्रीलिमिनरी जीएस वाले पेपर में आ चुके हैं, इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, पूरी देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको सब्सक्राइब करने ज़रूर। थैंक्स। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ with reference to the agreement at the UNFCCC meeting in Paris in 2015 में जो हुई थी, which of the following statement is correct। कुछ स्टेटमेंट दी है, करेक्ट बतानी है। तो करेक्ट स्टेटमेंट है कि the agreement aims to limit the greenhouse gas emissions so that the rise in average global temperature by the end of this century does not exceed 2 degree centigrade or even 1.5 degree centigrade above pre-industrial levels। ठीक है, ये 2015 में जो पेरिस में हुई थी यूएनएफसीसी की मीटिंग, उसमें बोला गया था। ठीक है, तो डिटेल में देखते हैं। Parties to the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) reached a landmark agreement on 12th December in Paris, charting a fundamentally new course in the two-decade-old global climate effort. An historic agreement to combat climate change and unleash actions and investment towards a low-carbon, resilient and sustainable future was agreed by 195 nations in Paris, France. ठीक है, The Universal Agreement's main aim is to keep a global temperature rise this country well below 2 degrees centigrade and to drive efforts to limit the temperature increase even further to 1.5 degrees centigrade above pre-industrial levels. ठीक है, UNFCCC Conference of the Parties are say the COP21 agreed to extend the current goal of mobilizing $100 billion a year in sport by 2020 through 2015। ठीक है, 2020 से 2025 तक, with a new higher goal to be set for the period after 2025। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड टेल विच ऑफ द गिवन इज करेक्ट। ठीक है ना, हाँ, तो करेक्ट स्टेटमेंट है कि The sustainable development goals have to be achieved by 2030। Yes, sustainable development goals जो हैं 2030 तक अचीव करना है। ठीक है, डिटेल देखते हैं। The sustainable development goals, that is SDGs, officially known as Transforming Our World, the 2030 Agenda for Sustainable Development, ठीक है, are an intergovernmental set of aspiration goals with 169 targets। ठीक है, the goals are contained in paragraph 54 United Nations Resolution A/RES/70/1 of 25 सितंबर 2015। ठीक है, हाँ, कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं SDGs, जिनको ऑफिशियली बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, हाँ, ये है ऑफिशियली SDG को ये बोलते हैं। ठीक है, कि ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है ना, हाँ, ये एक इंटर गवर्नमेंटल सेट ऑफ एस्पिरेशन गोल्स है। 169 इसके टारगेट्स हैं। ठीक है, 169 टारगेट्स। इसके गोल जो हैं यूनाइटेड नेशंस के जो रेजोल्यूशन 54 है, हाँ, उस पैराग्राफ 54 में है, यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के पैराग्राफ 54 में है ये SDGs। ठीक है ना, हाँ, तो उसके पैराग्राफ का नाम है मतलब कि A/RES/ मतलब स्लैश नहीं ओब्लिक, ठीक है, स्लैश, हाँ, A/RES/70/1 of 25 September 2015। हाँ, the history of the SDGs can be traced to 1972 when various governments met under the ambit of United Nations Human and Environment Conference to consider the rights of the human family to a healthy and productive environment, and not the Club of Rome, which is a global think tank that deals with a variety of international political issues। ठीक है, हाँ, founded in 1968 at Accademia di Lincei in Rome, Italy। ठीक है ना, हाँ, कहाँ पे फाउंड करी गई थी ये? 1968 में Accademia di Lincei in Rome, Italy। ठीक है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है ना, तो
कहाँ 1968 में एट अटाकाम्बा डी लिंसी अकेडेमिया डी लिंसी इन रोम इटली में 1968 में फाउंड करा गया, ठीक है ना। इट रेज्ड कंसिडरेबल पब्लिक अटेंशन इन 1972 विद इट्स रिपोर्ट, ठीक है, द लिमिट्स टू ग्रोथ। The club states that its mission is to act as a global catalyst for change through identification and analysis of the crucial problems facing humanity, ठीक है। जैसे वो क्वेश्चन में बोला था ना कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी कि द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1992 बाय ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड द रोमा क्लब ऑफ रोम। नो, इट इज इनकरेक्ट, ठीक है, बिकॉज the history of SDG can be traced to 1972 when various governments met under the ambit of United Nations Human and Environment Conference to consider the right of the human family to a healthy and productive environment, and not the Club of Rome, ठीक है ना, which is a global think tank, deals with a variety of international political issues, ठीक है। Next question is, the term intended nationally determined contribution is sometimes seen in the news in the context of what, ठीक है। आंसर है कि it's a plan of action outlined by the countries of the world to combat climate change, ठीक है। क्या intended nationally determined contributions, ठीक है, क्या होता है कि a plan of actions outlined by countries of the world to combat climate change, ठीक है। डिटेल देखते हैं। Intended nationally determined contribution identifies the actions a national government intends to take under the Paris Agreement agreed in December 2015 at the 21st session of the Conference of the Parties COP21. These are therefore the basis of post-2020 global emissions reductions commitments included in the climate change agreement, ठीक है ना। हाँ, in their intended nationally determined contribution, UNFCCC parties requested to outline the steps they are taking or will take to reduce emission at national level. Next question is, what are the importance of United Nations Convention to combat desertification? तो आंसर है हाँ, तो 3 स्टेटमेंट हैं जिनमें 2 सही हैं, ठीक है ना। वो देखते हैं कि पहली स्टेटमेंट है कि हाँ, इस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का, ठीक है ना। पहली इंपॉर्टेंस है कि इट एम्स टू प्रमोट इफेक्टिव एक्शन थ्रू इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम्स एंड सपोर्टिव इंटरनेशनल पार्टनरशिप, ठीक है। दूसरा एम है कि इंपॉर्टेंस है कि इट इज़ कमिटेड टू बॉटम अप अप्रोच, इट इज़ कमिटेड टू बॉटम अप अप्रोच इनकरेजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। डिटेल देखते हैं कि द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट अडॉप्टेड इन 1994. It seeks to improve land productivity, to restore or to preserve land, to establish more efficient water usage, and to introduce sustainable development in the affected areas. It is particularly committed to actively encouraging the participation of local populations to respond to government decision made on desertification issues, ठीक है। It aims to combat desertification and ease the effects of drought in those countries seriously affected by drought and or desertification. Next question है with reference to Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW, ठीक है ना। OPCW means Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW, Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, ठीक है। कि with reference to the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW, ठीक है ना, consider the following statements, ठीक है, and tell which of the given statement is correct. कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं लेकिन उनमें से करेक्ट सिर्फ 2 ही हैं, दैट इज़ नंबर 1 के इट मॉनिटर्स केमिकल इंडस्ट्री टू प्रिवेंट न्यू वेपन्स फ्रॉम इमर्जिंग, ठीक है, कौन, OPCW। उसके बाद है कि इट प्रोवाइड्स असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन टू स्टेट और पार्टीज अगेंस्ट केमिकल वेपन्स थ्रेट, ठीक है। किसका काम है ये, OPCW का, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। डिटेल थोड़ी देखते हैं इसके बारे में। हाँ, एक और स्टेटमेंट दी है वो इनकरेक्ट है, वो कि इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन इन वर्किंग विद NATO एंड WHO, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि OPCW दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ठीक है। हाँ, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद द वर्किंग रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है।
हाँ, this OPCW, this organization has 4 key provisions, ठीक है. OPCW, that is Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW. इसके जो हैं 4 की provisions हैं. नंबर 1 आ गया कि destroying all existing chemical weapons under international verification by OPCW, ठीक है. नंबर 2 है मॉनिटरिंग केमिकल इंडस्ट्री टू प्रिवेंट न्यू वेपन्स फ्रॉम री एमर्जिंग, ठीक है. नंबर 3 प्रोवाइडिंग असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन टू स्टेट और पार्टीज अगेंस्ट केमिकल थ्रेट्स, ठीक है. OPCW का काम है. देन फोस्टरिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू स्ट्रेंथन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन एंड प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है. एक ये है इसका जो है वो प्रोविजन है, ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन इज करेक्ट, ठीक है ना. करेक्टली मैच, ठीक है ना. फर्स्ट कॉलम में आ गया टर्म्स समटाइम सीन इन द न्यूज़, और कॉलम बी में है देयर ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिन हुआ है इनका, ठीक है ना. तो जो करेक्टली मैच्ड है वो एक ये दैट इज़ क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल से ओरिजिन है इसका, ठीक है. कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है इसका ओरिजिन कहाँ से है, आंसर है क्योटो प्रोटोकॉल से, ठीक है ना. 2 और स्टेटमेंट हैं लेकिन वो इनकरेक्ट हैं. जैसे लिखा हुआ है अनेक्स फर्स्ट कंट्रीज, आगे लिखा कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ये भी इनकरेक्ट है. फिर लिखा इन्होंने सर्टिफाइड एमिशंस रिडक्शंस के इसका ओरिजिन नगोया प्रोटोकॉल से, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है. ये सही नहीं है. तो करेक्ट सिर्फ एक ही है दैट इज़ क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है इसका ओरिजिन है क्योटो प्रोटोकॉल से. अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इन सभी के बारे में, ठीक है. क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM डिफाइंड इन आर्टिकल 12 ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल अलोज अ कंट्री विद एन एमिशन रिडक्शन और एमिशन लिमिटेशन कमिटमेंट, ठीक है, अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल एनेक्स बी पार्टी टू इम्प्लीमेंट एन एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है. CDM की बात हो रही है. सच प्रोजेक्ट्स कैन अर्न सेलेबल सर्टिफाइड रिडक्शंस SCR मीन्स सेलेबल सर्टिफाइड रिडक्शन SCR credits each equivalent to 1 ton of carbon dioxide which can be counted towards the meeting Kyoto targets, ठीक है. The mechanism is seen by many as a ट्रेल ब्लेजर, ठीक है ना. द मैकेनिज्म इज सीन बाय मेनी एज ट्रेल ब्लेजर, ठीक है ना. इट इज़ द फर्स्ट ग्लोबल इन्वायरमेंटल इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट स्कीम ऑफ इट्स काइंड प्रोवाइडिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड एमिशंस ऑफसेट इंस्ट्रूमेंट CERs, ठीक है. A CDM project activity might involve, for example, a rural electrification project using solar panels or the installation of the more energy efficient boilers, ठीक है. The mechanism stimulates sustainable development and emission reductions while giving industrialized countries some flexibility in how they meet their emission reduction or limitation targets, ठीक है. This is known as Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing (ABS) to the Convention on Biological Diversity is a supplementary agreement to the Convention on Biological Diversity, ठीक है. Nagoya Protocol की बात हो रही है. It provides a transparent legal framework for the effective implementation of one of the 3 objectives of CBD, that is the fair and equitable sharing of benefits arising out of the utilization of genetic resources, ठीक है. नगोया प्रोटोकॉल में. देन कार्टाजेना का देखते हैं. द कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोडाइवर्सिटी टू द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट which aims to ensure the safe handling, transport and use of living modified organism LMOs resulting from modern biotechnology that may have adverse effects on biological diversity, taking also into account risks to human health, ठीक है. It was adopted on 29th January 2000 and entered into force on 11th September 2003, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू फाइंड द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेबल, ठीक है. हाँ, क्या ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू फाइंड द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेबल, ठीक है ना. तो करेक्ट आंसर है कि हाँ, नंबर 1 सीलिंग फैंस, नंबर 2 आ गया इलेक्ट्रिक गीजर्स, नंबर 3 आ गया ट्यूबुलर फ्लोरेसेंट लैंप्स, ठीक है. हाँ कि देर इज़ अ लेबल नेम्ड एज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेबल, ठीक है ना. हाँ, इट इज़ ऑन
नंबर 1 सीलिंग फैंस, इलेक्ट्रिक गीजर्स एंड ट्यूबुलर फ्लोरेसेंट लैंप्स। तो डिटेल में देख लेते हैं कि हाँ दिस ब्यूरी ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेवल, ठीक है ना। इट इज़ इन्वोक्ड फॉर इक्विपमेंट्स और एप्लियंसेस सच एज रूम एयर कंडीशनर, सीलिंग फैन, कलर टेलीविजन, कंप्यूटर, डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, डोमेस्टिक गैस स्टोव, फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, जनरल पर्पस इंडस्ट्रियल मोटर, मोनोसेट पंप, ओपन वेल सबमर्सिबल पंप सेट, स्टेशनरी टाइप वाटर हीटर, सबमर्सिबल पंप सेट, CFL, then BALLAST ballast, then solid state inverter, then office automation projects, then diesel engine driven mono set pumps for agricultural purposes, then diesel generator set, then LED lamps, inverter, AC etc. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ अ पर्टिकुलर बटरफ्लाई डिक्लेयर्ड एज स्टेट बटरफ्लाई, ठीक है ना। तो आंसर है कि महाराष्ट्र, ठीक है ना। Recently, for the first time in our country, which of the following state has a particular butterfly declared as state butterfly, ठीक है। तो आंसर है महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन आया था आपका इसमें हाँ 2016 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ इसी का डिटेल देखते हैं आप कि महाराष्ट्र हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव अ स्टेट बटरफ्लाई, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड द ब्लू मोरमोन ब्लू मोरमोन जिसका साइंटिफिक नेम है पेपिलियो पॉलिमनेस्टर, PAPILIO पेपिलियो पॉलिमनेस्टर, POLYMNEST पॉलिमनेस्टर, ठीक है ना। कि स्टेट महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड ब्लू मोरमन दैट इज पेपिलियो पॉलिमनेस्टर एज द स्टेट बटरफ्लाई, ठीक है। द ब्लू मोरमोन इज अ लार्ज swallowtail butterfly found primarily in Sri Lanka and India, mainly restricted to the western Ghats of Maharashtra, South India and coastal belts, ठीक है। It may occasionally be spotted in the Maharashtrian mainland between Vidarbha and western Maharashtra, ठीक है। Next question is which of the following best describes the aim of Green India Mission of the Government of India, ठीक है। Green India Mission of Government of India, ठीक है। कुछ ऑप्शंस दिए हैं, करेक्ट बताना है, ठीक है ना। करेक्ट है इसका कि रिस्टोरिंग एंड इनहेंसिंग फॉरेस्ट कवर एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट चेंज बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स, ठीक है। हाँ क्या ग्रीन इंडिया मिशन जो है, हाँ ग्रीन इंडिया मिशन जो है इसका एम है कि रिपोर्टिंग एंड इनहेंसिंग फॉरेस्ट कवर एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट चेंज बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स, ठीक है। हाँ तो इस डिटेल में थोड़ा देखते हैं कि द ग्रीन इंडिया मिशन GIM इज़ वन ऑफ द 8 मिशंस आउटलाइंड अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC, ठीक है। इट एम्स टू प्रोटेक्टिंग रिजॉर्टिंग एंड इनहेंसिंग इंडियाज डिमिनिशिंग फॉरेस्ट कवर एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट चेंज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स, ठीक है। हाँ ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में बात हो रही है। हाँ It envisages a holistic view of greening and focuses on multiple ecosystem services, especially biodiversity, water, biomass, preserving mangroves, wetlands, critical habitats, etc., along with carbon sequestration as a co-benefit, ठीक है। This mission has adopted an integrated cross-sectoral approach as it will be implemented on both public as well as private lands with a key role of the local communities in planning, decision making, implementation and monitoring, ठीक है ना। मिशन के गोल क्या हैं इसके? नंबर 1 to increase forest or tree cover to the extent of 5 million hectares MHA, ठीक है ना। 5 million hectares and improve quality of forest or tree cover on another 5 million hectare or 5 MHA, ठीक है, of forest or non forest land, ठीक है।
Number second है to improve or enhance ecosystem services like carbon sequestration and storage in forest and other ecosystem. Then improving hydrological services and biodiversity, along with provisioning services like fuel, fodder, and timber and non-timber forest produces. NTFP, ठीक है ना, timber and non-timber forest produces, ठीक है. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इसका के गोल है इसका के टू इंक्रीज फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड इनकम ऑफ अबाउट 3 मिलियन हाउस होल्ड्स, ठीक है. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2017 में आया था कि अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन नॉट बी हंटेड बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजंस प्रोवाइडेड बाय लॉ, ठीक है ना. हाँ, तो ऑप्शन है आपके पास गारियल, इंडियन वाइल्ड एस एंड वाइल्ड बफेलो. तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव आर द करेक्ट आंसर, ठीक है. कि अकॉर्डिंग, हाँ, डिटेल में देखते हैं आप कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डेड द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन टू गारियल बाय ब्रिंगिंग इट अंडर शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है. हाँ, देन इन 1976 प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल वाज इनिशिएटेड विद सपोर्ट फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है. Then the Indian wild ass is native to southern Asia. As of 2016, this Indian wild ass is listed as a near threatened by IUCN, ठीक है. Then wild buffalo is also listed under the schedule first of the Wildlife Protection Act of 1972, ठीक है ना. हाँ, तो इसलिए क्वेश्चन के ये गारियल, वाइल्ड, इंडियन वाइल्ड एस, वाइल्ड बुफलो, ठीक है ना. तो ये सारे जो हैं हाँ, दिस कैन नॉट बी हंटेड बाय एनी पर्सन अंडर एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजन ऑफ प्रोवाइडेड बाय लॉ, ठीक है ना. तो बाकी ये जो हैं ये प्रोहिबिट हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स अज्यूम्स इंपॉर्टेंस इन बीइंग अ गुड लिंक बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है. हाँ, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स में गुड लिंक कौन एज्यूम करता है, ठीक है. तो आंसर है सथ्यामंगलम टाइगर रिजर्व. सथ्यामंगलम, SATHYAMANGAL, सथ्यामंगलम टाइगर रिजर्व जो है assumes importance in being a good link between eastern and western Ghats, ठीक है. डिटेल देखते हैं. सथ्यामंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व इज अ प्रोटेक्टेड एरिया एंड टाइगर रिजर्व अलोंग द वेस्टर्न घाट्स इन द इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है. Sathyamangalam Forest Range is a significant wildlife corridor in Nilgiri Biosphere Reserve between the Western Ghats and the rest of the Eastern Ghats and is a genetic link between the 4 other protected areas which it adjoins, including the Biligiri Ranga Swami Temple Wildlife Sanctuary. Biligiri Ranga Swami Temple Wildlife Sanctuary, ठीक है. सिगूर प्लेट्यू, मधुमलाई नेशनल पार्क एंड बांडीपुर नेशनल पार्क, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फाना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स, दैट इज TRAFFIC. ट्रैफिक, TRAFFIC, ट्रैफिक मीन्स ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फाना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स, ट्रैफिक, ठीक है ना. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रैफिक मीन्स ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फाना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स, ठीक है. हाँ, एंड कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और बताना है कौन सा करेक्ट है, ठीक है ना. तो करेक्ट सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, दैट इज द मिशन ऑफ ट्रैफिक इज टू इंश्योर, TRAFFIC, ठीक है. द मिशन ऑफ दिस ट्रैफिक इज टू इंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट अ थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है. थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. हाँ, और इसमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी है, वो ये है कि ट्रैफिक इज़ अ ब्यूरो अंडर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, UNEP. ये इनकरेक्ट है, ठीक है. अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं जो स्टेटमेंट हाँ पहली थी जो कि इनकरेक्ट थी, जिसमें लिखा कि UNEP का है, ये वो नहीं है, ठीक है ना. बिकॉज दिस ट्रैफिक इज़ एन NGO बट नॉट अ ब्यूरो अंडर UNEP, ठीक है ना. दिस ट्रैफिक इज गवर्न्ड बाय ट्रैफिक
committee, a steering group composed of members of traffic partners organization, that is WWF and IUCN, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड IUCN, ठीक है, हाँ, उनके मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना, कि दिस ट्रैफिक इज गवर्नड बाय द ट्रैफिक कमेटी which is a steering group composed of members of traffic partner organizations, that is WWF and IUCN के members होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि दिस ट्रैफिक TRAFFIC ट्रैफिक इज वर्किंग ग्लोबली ऑन वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, ठीक है, हाँ, ये भी सही है। देन दिस ट्रैफिक स्पेशलाइजेस इन इन्वेस्टिगेटिंग एंड एनालाइजिंग वाइल्ड लाइफ ट्रेड ट्रेंड्स पैटर्न्स impacts and delivers to provide the leading knowledge based on trade in wild animals and plants, ठीक है। तो हमने ट्रैफिक के बारे में बात करी, दैट इज ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फाना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स ट्रैफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉल्विंग पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बायो रेमिडिएशन टेक्निक, ठीक है ना, कि जब पॉल्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बायो रेमिडिएशन टेक्निक यूज़ करते हैं उसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो आंसर है इसके कि 2 फ़ायदे हैं। नंबर 1, हाँ, मतलब फ़ायदे तो हैं, मतलब कि यहाँ पे स्टेटमेंट 3 दी गई हैं, करेक्ट 2 हैं, वो आंसर की वो देखते हैं। नंबर 1 कि दिस it is a technique for cleaning up pollution by enhancing the same biodegradation process that occurs in nature, ठीक है, उसको enhance करता है बायोरेमिडिएशन, ठीक है, बायोरेमिडिएशन टेक्निक, ठीक है, हाँ। देन जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर बायोरेमिडिएशन, ठीक है, हाँ, ये सही है। और एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी है कि एनी कंटामिनेंट विद हैवी मेटल सच एज कैडमियम एंड लेड कैन बी रेडली एंड कम्प्लीटली ट्रीटेड बाय बायोरेमिडिएशन और यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं इस बायोरेमिडिएशन टेक्निक के बारे में। बायोरेमिडिएशन प्रोवाइड्स अ टेक्निक फॉर क्लीनिंग अप पॉल्यूशन बाय इनहेंसिंग द सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेसेस दैट अकर इन नेचर, ठीक है, उन्हीं को इनहेंस करना बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस को, ये होता है बायोरेमिडिएशन में, ठीक है, कि जो नेचर में बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस है उसी को इनहेंस करो, ठीक है, हाँ। डिपेंडिंग ऑन द साइट एंड इट्स कंटामिनेंट्स बायोरेमिडिएशन में बी सेफर एंड लेस एक्सपेंसिव दैन अल्टरनेटिव सोल्यूशन सच एज इनसिनरेशन INCINERATI इंसिनरेशन और लैंड फिलिंग ऑफ द कंटामिनेटेड मटेरियल्स, ठीक है। This bioremediation is also has the advantage of treating the contamination in place so that large quantities of soil, sediment and water do not have to be dug up or pumped out of the ground for treatment, ठीक है। However, not all contaminants are easily treated by bioremediation using microorganisms, ठीक है। For example, heavy metals such as cadmium and lead are not Heavy metals such as cadmium and lead are not readily absorbed or captured by microorganisms but occur in phytoremediation, which is a part of bioremediation, ठीक है। The use of genetic engineering to create organisms specifically designed for bioremediation has great potential, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि due to some reasons if there is a huge fall in the population of species of butterflies what could be its likely consequences, ठीक है। तो likely मतलब कि अगर जो बटरफ्लाई की पॉपुलेशन जो है अचानक एकदम कम होना शुरू होगी तो इसके क्या consequences होंगे, तो वो ये होंगे। नंबर 1 ये है कि पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, ठीक है। उसके बाद ये है कि इट कुड लीड टू अ फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ वास्प स्पाइडर्स एंड बर्ड्स, ठीक है, उनकी कुछ पॉपुलेशन जो हैं वो कम हो जाएंगी, ठीक है। एक और इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया वो इनकरेक्ट है, उसमें ये लिखा कि देयर कुड बी अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट, ये इनकरेक्ट है, ठीक है ना। सिर्फ वास्प मतलब डडियार बर्ड्स और स्पाइडर की पॉपुलेशन कम हो सकती है, ठीक है, हाँ। तो नंबर 1 था कि पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, येस इट इज़ ट्रू बिकॉज बटरफ्लाइज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पॉलिनेशन, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट था कि जो कि इनकरेक्ट है कि देयर कुड बी ड्रास्टिक इंक्रीज इन फंगल इन्फेक्शन
of some cultivated plants, ठीक है, it is incorrect because there is no direct relation between butterflies and reducing fungal infections in plants, ठीक है. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट थी कि इट कुड लीड टू अ फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ वास्प, स्पाइडर एंड बर्ड्स, ठीक है, ये सही है बिकॉज ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज वुड लीड टू डिसरप्शन ऑफ फूड चेन्स, इकोसिस्टम, pollination, and hence a fall in population of some species which are dependent on it like wasps, spiders and birds will reduce, ठीक है. हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि it is possible to produce algae based biofuels but what are the likely limitations of developing countries in promoting this industry, ठीक है, algae based biofuel, ठीक है. हाँ, तो क्या बताना है कि what are the likely limitations of developing countries in promoting this algae based biofuels, ठीक है. तो इसका आंसर है नंबर 1 के सेटिंग अप एंड इंजीनियरिंग द एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज टेक्नोलॉजी अनटिल द कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, ठीक है. नंबर 2 ये है कि इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्शन नेसेसिटेट्स द सेटिंग अप ऑफ लार्ज स्केल फर्टिलाइजर्स एंड लार्ज स्केल फैसिलिटीज विच में रेज इकोलॉजिकल एंड सोशल कंसर्न्स, ठीक है. हाँ, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन्होंने दी गई है, वो ये है कि प्रोडक्शन ऑफ एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल इज पॉसिबल इन सीजन ओनली नॉट एन कंटिनेंट्स, ये इनकरेक्ट है, ठीक है. थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसके बारे में कि द टर्म थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल, ठीक है, एक टर्म है, फ्रेज है थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल, ठीक है. द टर्म थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल हैज़ रिसेंटली इंटर्ड द मेन स्ट्रीम. इट रेफर्स टू बायोफ्यूल ड्राइवन फ्रॉम एल्गी from ponds and open reservoirs, photo bioreactors, ठीक है ना. These are the most advanced and thus most difficult systems to implement, resulting in high capital cost, ठीक है. हाँ, तो क्वेश्चन में भी यही था कि आप ऐसी लिमिटेशंस बताओ जो कि हम डेवलपिंग कंट्री में ऐसा नहीं कर सकते, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि in the context of mitigating the impending global warming due to anthropogenic emissions of carbon dioxide, which of the following can be the potential sites for carbon sequestration, ठीक है. तो आंसर है कि नंबर 1 abundant and uneconomic coal seams, नंबर 2 है depleted oil and gas reservoirs, और नंबर 3 है subterranean deep saline formations, ठीक है. ये तीनों करेक्ट आंसर हैं. कि क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिटिगेटिंग द इम्पेंडिंग ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पोटेंशियल साइट्स फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. तो आंसर है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की पोटेंशियल साइट्स जो हैं वो नंबर 1 ये है कि अबांडेंट एंड अनइकोनॉमिक कोल सीम्स, ठीक है, वहाँ पे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो सकता है. नंबर 2 डिप्लीटेड सॉइल एंड गैस रिजर्वायर्स, ठीक है. हाँ, डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिजर्वायर, जहाँ पे पहले ऑयल या गैस रिजर्वायर्स था वहाँ पे भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं. उसके बाद है कि सबटरेनियन डीप सैलाइन फॉर्मेशंस, ठीक है, जो बिल्कुल नीचे हैं ज़मीन से, डीप सैलाइन फॉर्मेशन वहाँ पे भी कर सकते हैं. डिटेल में थोड़ा देखते हैं कि कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द मेजर स्टेशनरी सोर्सेज एंड इट्स स्टोरेज इनटू डीप जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस इज कंसीडर्ड एज अ पोटेंशियल मिटिगेशन ऑप्शन, ठीक है. जियोलॉजिकल स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी अंडरटेकन इन अ वैरायटी ऑफ जियोलॉजिकल सेटिंग्स इन सेडिमेंट्री बेसिन्स, ठीक है. द ऑप्शंस फॉर कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन आर एज फॉलोज. नंबर 1 के हाँ, जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए जो ऑप्शंस है हमारे पास वो कौन कौन से. नंबर 1 आ गया डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिजर्वायर्स. नंबर 2 आ गया डीप अनमाइनेबल कोल सीम्स और इनहेंस्ड कोल बेड मीथेन रिकवरी, ECBM, ठीक है ना. डीप अनमाइनेबल कोल सीम्स या इनहेंस्ड कोल बेड मीथेन रिकवरी, ECBM, ठीक है. नंबर 3 आ गया ओशन. नंबर 4 आ गया डीप अनयूज्ड सैलाइन वाटर सैचुरेटेड फॉर्मेशंस. नंबर 5 आ गया अदर जियोलॉजिकल मीडिया और बेसल्ट्स, BASALT, बेसल्ट्स, शेल्स एंड कैविटीज़, ठीक है. नंबर 6 पे आ गया कि सबटरेनियन डीप सैलाइन फॉर्मेशंस. ये कुछ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द टर्म एम स्ट्रिप्स, एम कैपिटल फिर एस टी, एम फिर आगे डैश देके छोटी सी, फिर एस टी कैपिटल, फिर आर स्मॉल, फिर आई पी ई एस कैपिटल, ठीक है ना, सिर्फ आर है स्मॉल, ठीक है ना। एम स्ट्रिप्स, एस टी फिर स्मॉल आर तो आई पी ई एस स्ट्रिप्स, ठीक है। द टर्म एम स्ट्रिप्स इज समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट। आंसर है कि इट इज़ सीन, द टर्म एम स्ट्रिप्स इज सीन समटाइम्स इन न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व के रिलेटेड है ये, ठीक है ना। अच्छा डिटेल में देखते हैं इसका आंसर के द फुल फॉर्म ऑफ एम स्ट्रिप्स इज मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, ठीक है। ये एम स्ट्रिप्स की फुल फॉर्म होगी। एम मीन्स हो गया मॉनिटरिंग, एस मीन्स सिस्टम, टी मीन्स टाइगर्स, टाइगर्स ठीक है ना, आई हाँ टाइगर्स, आई आर स्मॉल है क्योंकि वो इसी टाइगर वाला आर यूज़ करा, ठीक है ना। आई मीन्स इंटेंसिव, पी मीन्स प्रोटेक्शन एंड हाँ ई मीन्स इकोलॉजिकल, एस मीन्स स्टेटस, ठीक है। तो एम स्ट्रिप्स की फुल फॉर्म होगी मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, ठीक है। हाँ दिस एम स्ट्रिप्स इट इज़ अ सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 2010 इन सम टाइगर रिजर्व्स, ठीक है। द एम ऑफ दिस एम स्ट्रिप्स इज टू रिड्यूस वल्नरेबिलिटी ऑफ टाइगर्स, ठीक है। टाइगर की वल्नरेबिलिटी को हमने कम करना है एम स्ट्रिप्स के द्वारा। ये एक जो है सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग सिस्टम है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2010 में लॉन्च करा कुछ टाइगर रिजर्व्स में, ठीक है। द सिस्टम दैट इज एम स्ट्रिप्स would enable field managers to assist intensity and spatial coverage of patrols in a geographic information system GIS domain, ठीक है। geographic information system domain GIS domain, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन इंडिया इफ अ स्पीसीज ऑफ टार्टस इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 व्हाट डज इट इम्प्लाई, ठीक है। कि इंडिया में अगर कोई स्पीसीज को हम डिक्लेयर कर देते हैं प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 तो इसका क्या मतलब होता है। तो आंसर है कि इट इंजॉयज द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज द टाइगर, ठीक है। तो उसको उतनी ही प्रोटेक्शन इंजॉय करता है जितना टाइगर करता है, ठीक है। अगर किसी भी स्पीसीज को हम जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का उसके शेड्यूल 1 में डाल देते हैं तब वो उतनी ही जो है प्रोटेक्शन इंजॉय करेगी जितनी के टाइगर प्रोटेक्शन इंजॉय करता है, ठीक है। डिटेल देखते हैं कि टाइगर इज आल्सो एन एनिमल इंक्लूडेड इन द शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। हैंस टार्टस जो होता है ना, हैंस टार्टस इन द सेड क्वेश्चन विल आल्सो एंजॉय द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है। हाँ अगर वो शेड्यूल फर्स्ट में डाला जाता है इस एक्ट के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली देर वाज अ प्रपोजल टू ट्रांसलोकेट सम ऑफ द लायंस फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट इन गुजरात टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। तो आंसर है कि कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, KUNO कूनो PALPUR का पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। कि रिसेंटली अभी एक प्रपोजल आया था कि कुछ लायंस को जो है उनकी नेचुरल हैबिटेट जो गुजरात में है वहाँ से ट्रांसलोकेट करा जाए, किस जगह में। तो आंसर है कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बोला था, ठीक है। ऑप्शन में कुछ और भी ऑप्शन जैसे कार्बेट नेशनल पार्क, माडूमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरिस्का नेशनल पार्क, ये इनकरेक्ट है। करेक्ट है कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। डिटेल में देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रिसर्चर्स कंफर्म्ड दैट द पालपुर कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, Palpur Kuno Wildlife Sanctuary is the most promising location for to re-establish a free-ranging population of Asiatic lions and certified it ready to receive its first batch of translocated lions from Gir Wildlife Sanctuary where they are highly overpopulated, ठीक है ना। गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं, उनको कहाँ पे करेंगे, पालपुर कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पे काफ़ी सही लोकेशन है इनके लिए, ठीक है। There are large-scale death in the population annually because of over-increasing competition due to animal overcrowding, ठीक है। Asiatic lions prides require high territories, but there is limited space at Gir Wildlife Sanctuary, ठीक है, which is boxed in on all sides by heavy human habitation, ठीक है।
The Kuno Palpur Wildlife Sanctuary was selected as the reintroduction site for the endangered Asiatic lions because it is in its former range of lions before it was hunted into extinction in about 1873. ठीक है कि Kuno Palpur Wildlife Sanctuary was selected as the reintroduction site for the endangered Asiatic lion because it is in the former range of lions before it was hunted into extinctions in about 1873. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, ठीक है कि विद रेफरेंस टू द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस GCCA, that is Global Climate Change Alliance, GCCA Global Climate Change, ठीक है, विद रेफरेंस टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज GCCA विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है ना। कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें करेक्ट वाली बतानी है। तो करेक्ट स्टेटमेंट है कि नंबर 1 कि दिस GCCA दैट इज़ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, ठीक है, GCCA इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द यूरोपियन यूनियन। नंबर 2 कि इट प्रोवाइड्स टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू टारगेटेड developing countries to integrate climate change into their development policies and budgets, ठीक है। हाँ, ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के जो हैं उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है ना। एक और भी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है कि इट इज़ कोऑर्डिनेटेड बाय वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट WRI एंड वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट WBCST, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है ना। थोड़ा डिटेल में देखते हैं इस GCCA के बारे में, दैट इज़ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस GCCA ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, ठीक है। This GCCA was established by the European Union in 2007 to strengthen the dialogue and cooperation with developing countries, in particular least developed countries LDC and small island developing states SIDS, ठीक है। नंबर 2 के द GCCA दैट इज़ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस act as a source of technical and financial support for the world's most climate vulnerable countries whose populations need climate finance the most, ठीक है ना। हाँ, extra efforts will be made to strengthen the strategically important issues of ecosystem based adaptation, mitigation and gender equality, ठीक है। तो ये GCCA के बारे में पढ़ा। G मीन्स ग्लोबल, C मीन्स क्लाइमेट, फिर C मीन्स चेंज, A मीन्स अलायंस, GCCA ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD इज स्टैंडर्ड क्राइटेरियन फॉर व्हाट? आंसर है कि इट इज़ अ स्टैंडर्ड क्राइटेरियन फॉर पॉल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD इज़ अ स्टैंडर्ड क्राइटेरियन फॉर पॉल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, पॉल्यूशन ऐसे ASSAY इन पॉल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। डिटेल में देखते हैं कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD आल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। हाँ, biochemical oxygen demand BOD are also called biological oxygen demand is the amount of dissolved oxygen needed or demanded by aerobic biological organisms to break down organic material present in a given water sample at certain temperature over a specific टाइम पीरियड कि BOD जो होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट होता है जो कि एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होता है ताकि वो ऑर्गेनिक मटेरियल जो किसी वाटर सैंपल में है उसको ब्रेक डाउन करें किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ठीक है ना। तो वो जो ऑक्सीजन का अमाउंट, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट रिक्वायर्ड होता है उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, जो कि ज़रूरत होती है एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। हाँ, इसको बोलते हैं BOD, ठीक है ना। द BOD वैल्यू इज़ मोस्ट कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन मिलीग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड पर लीटर ऑफ sample during 5 days of incubation at 20 degree centigrade and often used as a surrogate of the degree of organic pollution of water, ठीक है। कि जो BOD वैल्यू है इसको कॉमनली एक्सप्रेस्ड करते हैं हम कैसे कि मिलीग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन
कंज्यूम्ड पर लीटर ऑफ सैंपल, ठीक है, कि 1 लीटर सैंपल लिया उसमें मिलीग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हुई, ठीक है ना, ड्यूरिंग 5 डेज ऑफ इंक्यूबेशन, 5 दिन का इंक्यूबेशन के दौरान में, ठीक है। हाँ, एक सैंपल लेंगे, 1 लीटर सैंपल, उसमें कितनी मिलीग्राम ऑक्सीजन कंज्यूम हुई 5 दिन के दौरान 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, और इसको ज़्यादातर इट इज़ यूज्ड एज अ सरोगेट ऑफ द डिग्री ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूशन ऑफ वाटर। इसको BOD से जो है एक ऑर्गेनिक पॉल्यूशन जो वाटर का उसकी डिग्री पता चलती है, ठीक है। हाँ, BOD कैन बी यूज्ड एज अ गाज फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो होते हैं उनकी इफेक्टिवनेस का एक गाज होता है ये, ठीक है ना, BOD। हाँ, BOD इज लिस्टेड एज अ कंट्रोवर्शियल पॉल्यूटेंट इन द US क्लीन वाटर एक्ट, ठीक है ना। इट इज लिस्टेड एज अ conventional pollutant, not controversial but conventional pollutant in the US clean water act, ठीक है ना। Next question is, with reference to the role of UN Habitat in the United program working towards a better urban future, which of the statement are correct, ठीक है ना, and select the correct answer, ठीक है। हाँ, तो करेक्ट आंसर है इसका कि नंबर 1 कि UN Habitat has been mandated by the United Nations General Assembly to promote socially and environmentally sustainable towns and cities to provide adequate shelter for all, ठीक है। नंबर 2 कि UN Habitat contributes to the overall objective of the United Nations system to reduce poverty and to promote access to safe drinking water and basic sanitation, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम, अदरवाइज नोन एज UN हैबिटेट, ठीक है। हाँ, UN हैबिटेट कॉमनली बोलते हैं, तो से नाम है इसका यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, कॉमनली इसको UN हैबिटेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, कि इट इज़ द यूनाइटेड नेशंस एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स, ठीक है। UN हैबिटेट इज़ मैंडेटेड टू प्रमोट सोशली एंड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल टाउन्स एंड सिटीज़ विद द गोल ऑफ प्रोवाइडिंग एडिक्वेट शेल्टर फॉर ऑल, ठीक है। हाँ, UN Habitat contributes to the overall objective of the United Nations system to reduce poverty and promote sustainable development, ठीक है। Its partner range from governments and local authorities to a wide cross section of non-governmental organizations and civil society groups, ठीक है। UN Habitat, the United Nations Human Settlements Program is mandated by the UN General Assembly to promote socially and environmentally sustainable towns and cities, ठीक है। It is the focal point for all urbanization and human settlement matters within the UN system, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है ना। हाँ, तो 2 स्टेटमेंट दी हैं, करेक्ट सिर्फ एक ही है, वो ये है कि the CCAC, that is Climate and Clean Air Coalition, CCAC Climate and Clean Air Coalition focuses on methane, black carbon and hydrofluorocarbons, के जो CCAC है, CCAC जिसकी फुल फॉर्म होती है Climate and Clean Air Coalition, ठीक है। Climate and Clean Air Coalition, जैसे कोलिशन गवर्नमेंट नहीं होती ऐसे वाला कोलिशन, ठीक है। हाँ, के द CCAC, हाँ, CCAC focuses on methane, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। CCAC जो है नंबर 1 मीथेन पे फोकस करता है, उसके बाद ब्लैक कार्बन पे और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के ऊपर, ठीक है ना। हाँ, एक और इन्होंने स्टेटमेंट लिखी है, वो इनकरेक्ट है, गलत है। उसमें यह है कि क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन CCAC टू रिड्यूस शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स इज़ अ यूनिक इनिशिएटिव ऑफ G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज। नो, इट इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में आंसर देखते हैं
कि द क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन CCAC to reduce short-lived climate pollutants was launched by United Nations Environment Program UNEP and 6 countries, that is Bangladesh, Canada, Ghana, Mexico, Sweden and United States on 16 Feb 2012 में, ठीक है। हाँ, it is the only global effort that unites governments, civil society and private sector committed to improving air quality and protecting the climate in next few decades by reducing short-lived climate pollutants across sectors, ठीक है। हाँ, उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट है कि द कोलिशंस इनिशियल फोकस इज ऑन मीथेन, ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा कि इफ़ यू वांट टू सी गारियल्स, GHARIALS गारियल्स, ठीक है। इफ़ यू वांट टू सी गारियल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास बिटार कैनिका मैंग्रोव्स, चंबल रिवर, पुलिकट लेक एंड दीपोर बील, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका चंबल रिवर, ठीक है ना। अगर आपको गारियल देखने हैं गारियल्स तो आप चंबल रिवर में चले जाएं, ठीक है। डिटेल में देखते हैं कि टुडे 3 वाइडली सेपरेटेड ब्रीडिंग सब पॉपुलेशंस ऑफ गारियल क्या हैं, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स आर लेफ्ट इन इंडिया, दैट इज चंबल रिवर, देन गिरवा रिवर एंड सोन रिवर, ठीक है ना, एंड वन इन नेपाल दैट इज रप्ती एंड नारायणा रिवर, ठीक है। हाँ, ये जो गारियल होते हैं एक्चुअली में ये फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल होते हैं, ठीक है। गारियल क्या होते हैं, ये फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल होते हैं, ठीक है ना। तो आज के दौर में 3 वाइडली सेपरेटेड ब्रीडिंग सब पॉपुलेशंस गारियल की जो हैं वो इंडिया में रही हैं, ठीक है। इंडिया के जो हैं एक आगे चंबल रिवर में, उसके बाद है गिरवा रिवर में GIRWA गिरवा रिवर में, और तीसरा है सोन रिवर में SON सोन रिवर में, ठीक है। और इसके अलावा एक जो है वो नेपाल में भी है, नेपाल का एक रिवर है जिसको रप्ती या नारायणी रिवर बोलते हैं, उसमें भी ये गारियल मिलेगा, ठीक है। तो इसके साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद है कि काफ़ी फ़ायदेमंद रही होगी ये वीडियो। इस वीडियो के बाद हम इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो आप उसको भी देखना। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और कमेंट भी करना। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफ़िज़।